Hi everyone, let's continue our discussion on population interaction. So this was the table that I have shown you and we have discussed mutualism with good details. Now we'll look for some other kind of interactions here. So this was all about mutualism that we did in the previous class. I hope you have checked the videos because if you do not do it and you directly jump on to see the next one, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. So kindly do check them. All the links are also given in the description section. If I will have good user ways, I'll start sharing the PDF of the sessions also. So you already have a Telegram channel associated to it, but for that I really need to have a decent enough learner base, which for the time being is not there on the channel. So please help me spread the word. Please like, comment, share and subscribe if these videos are helpful to you in your preparation. Let's get on to the next one, which is your competition. And also do not forget to check the geography series. हम उसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं. I think 20 lectures are already done. So we are doing it like every micro topic which needs to be done along with the PYQs हम साथ में कर रहे हैं. So please do check them. Next one is competition. अब हमने competition में क्या देखा था? If you remember, this is what we have done. Competition में क्या होगा? दोनों species जो है they will be harmed. वैसे भी competition नाम से ही होता है कि जीते चाहे कोई भी, नुकसान तो कहीं ना कहीं दोनों का ही हो रहा होता है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट थिंग्स आर देयर. तो ये तो अपने आप में क्लैरिटी है कि नेगेटिव रहेगा, बोथ विल बी हार्म्ड, बोथ द स्पीशीज विल बी हार्म्ड. अब इसमें भी देयर आर फर्दर थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. फर्स्टली, अ वेरी कॉमन केस ऑफ competition would be, like for example, when the closely, firstly write and then I'll explain. Closely related species compete for the same resources which are limiting. So what you have to remember is कि हमारे पास लिमिटिंग रिसोर्सेज अगर हैं, लिमिटिंग यानी कि बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, मतलब लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, इट्स नॉट अनलिमिटेडली अवेलेबल. सो द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर एंड देन देयर आर सर्टेन स्पीशीज विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन सम और द अदर मैनर, एंड वी हैव द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, सो दे विल कॉम्पीट फॉर दैट. ये एक जनरल केस हो जाता है. नो इफ समथिंग लाइक दिस विल हैपन, देन वॉट विल बी द केस? यहाँ पर जो सुपीरियर स्पीशी होगी, अब दो स्पीशी में एक सुपीरियर होगी, इन्फीरियर होगा, वो तो होगा ही. दोनों बिल्कुल एक तरह का ताकत, एक तरह की कैपेबिलिटी तो नहीं रखेंगे. कोई तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, 19-20 वाली जो केस होती है. सो द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज इन दिस केस विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर वन. धीरे धीरे वो ही कब्जा कर लेगी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमने सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज की बात की. सो इट विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज. चलिए, ये तो एक जनरल केस है जो कि संभव हो सकता है. अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ही एक प्रिंसिपल की भी बात की जाती है. खैर, आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ आई एक्चुअली गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट स्लाइटली लेटर. लेट्स सी द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इन द केस ऑफ कॉम्पिटिशन फर्स्ट, सो दैट वो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा. सो दिस इज़ वन सेट ऑफ पॉसिबिलिटी, बट is it important that every time the closely related species only will compete, or is it important that every time the resources will be limited only? No, there can be some questions related to this also and some doubts related to this also. So this is one possibility, good enough. In this case, what could be the conclusion that we have seen? But what about if the unrelated species are competing for the same resources? So the second set of possibility could be that totally unrelated species could also compete for same resources. अब इस केस में क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि कैसे हो सकता है. जैसे इन्होंने साउथ अमेरिकन लेक्स की बात की है, दैट फ्लैमिंगोज जो वहाँ पर हैं, विजिटिंग फ्लैमिंगोज, आई शो यू इन द इमेज, वो आते हैं बाहर से, विजिट करते हैं साउथ अमेरिकन लेक्स को, और जो वहाँ की रेसिडेंट फिशेस होती हैं उस लेक में, अपनी जो फिशेस पहले से रह रही होंगी. सो विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड द रेसिडेंट फिशेस इन साउथ अमेरिकन लेक्स, एंड दे आर नॉट सो रिलेटेड स्पीशी. एक फ्लैमिंगो है, ठीक है, ये है फ्लैमिंगो का एग्जाम्पल. इस तरीके के बर्ड्स होते हैं.
तो आप देख रहे हो ग्रुप में वो बर्ड्स हैं, और एक तो फिशेज हो गई. सो दे आर एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड स्पीशीज़, बट दे आर प्रेजेंट नाउ इन द सेम लेक. ठीक है, चाहे वो एक रेसिडेंट हो पहले से और एक विजिट कर रहा हो, दैट इज़ अनदर थिंग, बट दे आर देयर नाउ इन द सेम स्पेस, इन द फाइटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज. सो दे कॉम्पीट फॉर द कॉमन फूड. कॉमन फूड क्या होगा? उस लेक में कुछ प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा? कॉमन फूड क्या हो जाएगा? जू प्लैंकटन, जो कि उस लेक में प्रेजेंट होगा. तो अब दो नॉट रिलेटेड स्पीशीज़ और नॉन रिलेटेड स्पीशीज़ आर कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, सो दैट कुड ऑल्सो बी वन पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. अब इसमें एलिमिनेशन की भी हम बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो ये दो बिल्कुल अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं. अब हम थर्ड में देखेंगे कि एक थर्ड पॉसिबिलिटी जो बताती है वो ये कहता है कि क्या ये हमेशा ज़रूरी है कि आपका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड ही होगा? बिल्कुल नहीं. सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ दैट resources need not be limiting for the competition to occur. दो स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होने के लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट द रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड ओनली. तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? सो इट इज़ सेड दैट इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स यू टॉक अबाउट फूड, यू टॉक अबाउट लिविंग स्पेस एट्सेट्रा. अगर बहुत ज़्यादा अबंडेंट है तो भी क्या हो सकता है? द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू interfering and inhibitory presence. I will explain everything. Focus both on writing and understanding at the same time. Your mind should work simultaneously. Presence of other species. तो इस केस में अगर even if the resources are not limited but abundant in nature, even then what can happen? अगर एक स्पीशी की जो इंटरफेयरिंग टेंडेंसी हो या इनहिबिटरी, यानी कि रोकना किसी चीज़ को, इनहिबिट करना, if that is present then it might affect or it might negatively impact or reduce the feeding efficiency of the other species. कि एक स्पीशी एक जगह पर खा रहा है लेकिन उसकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो सकती है क्योंकि दूसरा कोई स्पीशी वहाँ प्रेजेंट है जो कि उसको इंटरफेयर कर रहा है, उसके काम में इंटरफेयर कर रहा है. अब एग्जाम्पल हम देखें तो ये एक टॉर्टोइस का एग्जाम्पल है. वो टॉर्टोइस का एग्जाम्पल है इन द गैलापागोस आइलैंड्स, अबिंगटन टॉर्टोइस इन द गैलापागोस आइलैंड्स. ये एक बार फिगर आप लोग देख लीजिए. इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो इसमें काउंट होगा. सो एग्जाम्पल, इट वॉज नोटिस्ड दैट देयर वॉज एक्सटिंक्शन ऑफ Abington tortoise in Galapagos Islands within a decade after introduction of goats. ठीक है, अब गैलापागोस आइलैंड में जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, अगेन दीज आर टू वेरी डिफरेंट स्पीशीज़, एक तरफ टॉर्टोइज एक तरफ गोट्स हैं. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इवन इन द रिसोर्सेज आर सो मच बट व्हाट कैन हैपन, वन स्पीशी माइट बी हैविंग दैट इंटरफेयरिंग ऑन इनहिबिटरी नेचर, जिसकी वजह से दूसरी की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी. नो, इफ़ वन स्पीशी विल नॉट बी एबल टू फीड ऑन प्रॉपरली, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा ना, वो स्पीशी विल नॉट सर्वाइव, दे विल जस्ट गेट एक्सटिंक्ट. यही चीज़ हुआ. So extinction of Abington tortoise was noticed in these islands within a decade after the introduction of goats. Why? Due to greater browsing efficiency. goats जो browse करती हैं, चरती हैं, इनकी ज़्यादा थी, तो रिसोर्सेज अच्छे खासे थे, लेकिन फिर भी ड्यू टू दी ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स, टॉर्टोइज जो है वो ख़त्म हो गए 10 साल के ही अंदर. ये नोटिस किया गया. So these are certain possibilities which we can notice in the case of, let's say, competition. अब उसमें अगर हम इन सब के बेसिस पे एक डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन. सो इन द केस ऑफ इंटरैक्शन तो हमें समझ में आ गया कि दोनों स्पीशी जो हैं वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, बट ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन अगर हम समझें तो वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसेस in which
the fitness of one species is significantly lower in presence of other species, कि दूसरे स्पीशी के प्रेजेंस में एक स्पीशी की फिटनेस जो है वो कम हो जाती है, उसको हम कंपटीशन समझ सकते हैं. नाउ एनसीईआरटी इंट्रोड्यूसेस यू टू सेवरल टर्म्स रिलेटेड टू कंपटीशन, तो हम वो सारे टर्म्स देखेंगे. वन इज योर कॉम्पिटिटिव रिलीज. I don't want you to miss out on anything, so I'm taking the content both from your NCERTs as well as the advanced level book so that आपके पास सब कुछ एक जगह पर हो. अब ये क्या चीज़ होती है और ये कब होता है? So it is said that a species whose distribution, कोई स्पीशी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि वो कहाँ कहाँ बटा होगा, a species whose distribution is restricted, एक बार लिख लेंगे फिर समझेंगे, टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, एक छोटे जोग्राफिकल एरिया में अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से रिस्ट्रिक्टेड है, सो स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज. तो कोई ऐसी सुपीरियर स्पीशीज़ है जिसके प्रेजेंस की वजह से उस छोटे स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में किसी स्पीशी का डिस्ट्रीब्यूशन जो बंटवारा है वो रुक जाता है. ठीक है, अब ये ऐसा नोटिस किया जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है, सो इट इज़ फाउंड टू एक्सपैंड इट्स, अगर लगे कि किसी के प्रेजेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रेस्ट्रिक्शन आ रही है, तो ऐसा देखा जाता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ जाता है. कैसे बढ़ जाता है? इज़ फाउंड टू एक्सपैंड इट्स distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो वो जो competing species है, अगर उसको हम चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम उसको रिमूव कर दें तो उसके वजह से जो दूसरी स्पीशी का डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा था वो एकदम से बढ़ जाएगा. तो इसी को कॉम्पिटिटिव रिलीज किया जाता है, दैट यू आर रिलीजिंग, यू आर रिमूविंग दैट पर्टिकुलर स्पीशी, दैट पर्टिकुलर सुपीरियर स्पीशी, जिसके वजह से दूसरे स्पीशी का डिस्ट्रीब्यूशन रुकावट पैदा कर रहा था. तो अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो वो जो दूसरी वाली स्पीशी थी जिसका रेस्ट्रिक्शन हो रहा था डिस्ट्रीब्यूशन में, वो अब आराम से विल बी एबल टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज एंड दैट टू ड्रामेटिकली, मतलब खूब ज़्यादा, क्योंकि आपने दूसरे को तो हटा दिया. सो दैट इज़ वन फिनोमिना दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब इसमें एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है विच इज़ गिवन बाय अ पर्सन नेम्ड एज गॉस. सो गॉस इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल क्या कहती है? Competitive exclusion principle. According to this, two closely related, याद करिएगा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है closely related species को लेके. I'll get back to that point again to show you. So two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely, and I will explain again, and competitively inferior one will be eliminated eventually, and this will happen only if resources are limited. तो जो हमने करा है उसी के लिए एक टर्म यहाँ यूज़ हो रहा है, या एक प्रिंसिपल जो है वो यूज़ हो रहा है. इसमें क्या कहा गया था, हमने क्या देखा था, जस्ट सी दिस अगेन. हमने क्या देखा कि अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं तो एंड इफ़ दे आर competing with the same resources, that too if they are limited in nature, then the superior one will just eventually eliminate the other inferior species, right? So that is what is said here according to this competitive exclusion principle given by Gauss.
ठीक है, इसको ही कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं कि इफ़ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग. नाउ दिस इज़ अ क्राइटेरिया एक्चुअली, कि ये कंडीशन तब हो पाएगा जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा, दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच आर कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, ये तभी को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. सो दे विल नॉट बी एबल टू को एग्जिस्ट indefinitely, and the inferior one will be eliminated eventually by the superior one only if the resources are limiting. ठीक है, ये तो गॉस का प्रिंसिपल हो गया. लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं दे डू नॉट बिलीव इन दिस. तो जो रीसेंट स्टडीज़ है वो क्या कहती हैं, लेट मी जस्ट शो यू दैट. बट रीसेंट स्टडीज़ का मानना है that the species facing competition might evolve. कि गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या कहा जा रहा है कि जो इन्फीरियर स्पीशी है वो तो अपने आप इवेंचुअली विल बी एलिमिनेटेड बाय द सुपीरियर वन. बट दिस रीसेंट स्टडी सेज दैट जो स्पीसी को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, यानी जो इन्फीरियर स्पीशी है, इट माइट इवॉल्व, कहा जा रहा है दैट इट माइट इवॉल्व सर्टेन मैकेनिज्म्स. हो सकता है वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को इवॉल्व कर ले दैट promote coexistence. So you cannot claim that they will not be able to coexist together. They might have, or they might evolve certain mechanisms which will promote coexistence rather than exclusion. अब किस तरह के mechanism? तो one example the recent study talks about is your resource partitioning. Again नाम से काफ़ी clear हो जाना चाहिए. Resource partitioning. इसमें क्या हो जाएगा? In this, two species competing for same resources can avoid competition. If they have to coexist, they will need to avoid the competition. नहीं तो फिर तो elimination हो जाएगा. पर अगर coexist करना है तो competition avoid करना पड़ेगा. So two species competing for the same resources can avoid competition by choosing different times for feeding or different foraging patterns. अब ये दोनों चीज़ें संभव हो सकती हैं. तो नाम क्या बताया जा रहा है इस मैकेनिज्म का? दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल विच इटसेल्फ सेज रिसोर्स पार्टीशनिंग. मतलब आप पार्टीशन कर दे रहे हो रिसोर्स को. नाउ द रिसोर्स कुड बी व्हाट, लेट द रिसोर्स कुड बी एनी स्पेस और फूड और अवेलेबिलिटी, एनीथिंग कैन बी देयर. तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उनको कंपटीशन अवॉइड करना है एंड इफ दे वांट टू कोएग्जिस्ट टुगेदर, सो दे माइट डिसाइड कि भाई अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फीड करेंगे. लेट्स से द एरिया इज़ लिमिटेड, ठीक है, लेट्स से द मतलब दिस इज़ द फिक्स्ड एरिया एंड वन स्पीशी लिविंग हियर विल फीड एट वन पर्टिकुलर टाइम, द सेकेंड वन विल फीड एट सम अदर टाइम. ठीक है, तो उसमें कोई कंपटीशन का परेशानी नहीं होगा. जब एक ही वक्त पे दोनों कोशिश करेंगे तब तो कंपटीशन होगा ना. अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो काहे का कंपटीशन है? या फिर जो उनका फोरेजिंग पैटर्न होगा वो भी अलग हो सकता है, तो खाने का तरीका अलग हो सकता है, ग्रेजिंग का तरीका अलग हो जाएगा. किसी भी तरीके से वो रिसोर्स पर जो एक्ट करेंगे, इफ़ दैट विल डिफर फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, देन दे विल बी एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड दे विल बी एबल टू को एग्जिस्ट टुगेदर. So that is a counter of what the Gauss principles, exclusion principle says, right? So this was all about competition. So we have done the second one also with greater detail. The second kind of population interaction, which is competition. Mutualism कर लिया कल, आज competition किया. In the next class, we'll talk about the further ones. So hope these sessions are helpful to you guys. Kindly like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Do check the geography videos also. Bye bye. Take care.